तेरा की बनाई जाए लाल लाल तेरा की बनाई जाए जम्बाए पोशाक लई साबुन शीशे जई जमे सुबह 4 बजे 10 बजे मारे गए एक धागा खिसकिया पैरां विच उलझिया बन्नो दे परांदे विच गोल गंढ पै गई लाल उन तेरा की बनाई दा लाल उन तेरा की बनाई दा की होया होएगा अंबां वाले बाग विच संगने शतूत थले की होया होएगा जो हाल तक आए नहीं लाल उन केड़ा गीत गाएंगी लाल उन केड़ा गीत गाएंगी हौली हौली बड़े हो गए उन्हां दे जख्मां ते ला दिओ मेहंदी दी मलम सुते पर बात नू पैरा दिता रात नू पक्के पक्के पत्थरां ते एक धागा डिग पिया नीले नीले पर पता ने राह दिता उस नू दौड़ाया चाकू दी तार च समाउण नू लाल उन तू भी कुछ बोलेंगी लाल उन तू भी कुछ बोलेंगी यार ओदा चुप सी लाड़ा सुई धुप सी चुपचाप कंडे उत्ते दोवें डिगे होए सी भजाया दौड़ाया धागा इथों ठीक आया मिट्टी विच लिबड़े कोल एक दूजे दे खुंबां वांगू चिट्टियां चादरा च टके होए आकड़े बदन लाल उन तेरा की बनाई दा लाल उन तेरा की बनाई दा ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ID ਗੌੜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਲੌਗਰ ਕਿਤਾਬ ਪਾਰਖੂ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਾਟਕੀ ਪਾਠਕ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਲੀਡਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਨੈਕਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਨਵਰ ਨਾਮਵਰ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦੀਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼, ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਦਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਦਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਦੀਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੱਦ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰਹਿਤਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਰਬਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦੀਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਦਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਅਦੀਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜੰਪਲ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਨਵ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਕਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਹਕੂਮਤੀ ਕਹਿਰ, ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ, ਜ਼ੁਲਮਤ
ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਨਾ ਵਿਚਾਰਗੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਸਾਹਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਬੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਠਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਆਸ਼ਿਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਲਖੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਨਜ਼ਮ, ਹਰ ਗਜ਼ਲ ਰੱਜ ਕੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਦਾਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦੀਬ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦੀਬ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਦੀਬ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਮਾ ਨਿਗਾਰ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਸੂਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਖਿਆਨ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ, ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਖਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया पंजाब दर्शन दा मित्रो, वीरो, भरावो। ते मेरी मैनू बड़ी खुशी हो रही है इस वेले तुहानू देख के ते तुहाडे नाल गलबात करके। मैं पंजाब विच ते पैदा मैं होया सी, पर मैनू क्षमा करना अगर मेरी पंजाबी उस थां ते नहीं है जेह्ड़ी तुसी, क्योंकि मेरी मादरी जबान जेह्ड़ी है उर्दू है। ते ये भी मैं तुहानू बतावां कि मैं बेसिकली कश्मीरी हाँ। रैंदा मैं पंजाब विच हाँ, पर मेरे नाना जी 1947 विच अमृतसर तो माइग्रेट करके लाहौर आई सी। ते एक बड़ी मतलब ते मैं पंजाब नू भी कबूल करना हाँ, क्योंकि मैं पंजाब इच ही मैं रैंदा हाँ, ते मेरी नौकरी भी इत्थे ही है, ते मेरी बोलचाल भी इत्थे ही है, मेरे दोस्त, मेरे पर प्यारे सब इत्थों ही रैंदे ने। ते कोशिश करांगा कि उर्दू विच ही गल करां, ते कभी कभार कुछ पंजाबी दा तड़का भी लावां। ज़बान मेरी भी ज़बान है, पर मादरी ज़बान भी ज़ाहिर बात है कुछ मजबूरी होंदी है। ते लिखदा मैं अंग्रेज़ी च आं, ते ये भी एक बिल्कुल ही अलग ही मामला है। पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है
कि मैं आज आप लोगों के दरमियान हूँ और ये मेरा पहला मौका है कि मैं आप लोगों के सामने जो हूँ। जारी बात है, पंजाब तो पंजाब है, जैसा कि पंजाब दर्शन मेरे मेहरबान ने अभी अभी कहा कि वो एक ख्याल है, एक रहतल है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के सामने आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। और इत्तेफाक से मैं हिंदुस्तान 3 दफ़ा गया हूँ, लेकिन पंजाब की साइड पे मेरा आना नहीं हुआ। हालाँकि ये पहला इलाका था जो कि मेरा होना चाहिए था, जहाँ मुझे जाना चाहिए था। और ज़ाहिर बात है, अमृतसर को कौन भूल सकता है। यहाँ से उर्दू के बहुत बेमिसाल अदीब जो हैं, जो पंजाबी थे उसमें, वो यहाँ से ही माइग्रेट करके जो हैं वो उन इलाकों में आए जिनको अब हम पाकिस्तान में कहते हैं। सादत हसन मंटो था उसमें, आरिफ अब्दुल मतीन थे उसमें, और भी बहुत से लोग थे। तो ये कैसे भूली जा सकती है बात। मैं आज का लेक्चर जो है वो हमारे एक बुजुर्ग अदीब मसूद अशर के नाम में ये लेक्चर करता हूँ। मसूद अशर साहब का इंतकाल अभी पिछले हफ्ते 5 जुलाई को 90 बरस की उम्र में हुआ, और वो जर्नलिज्म में, सहाफ़त में और उर्दू फ़िक्शन निगारी में एक बहुत बड़ा नाम था। और उन्होंने हमारे पाकिस्तान की तारीख़ में जब बहुत तारीख़ मतलब स्याह रातें थी डिक्टेटरशिप की, अयूब ख़ान की डिक्टेटरशिप थी, उसके बाद याहिया ख़ान की, ज़िया दौर की, उन्होंने उस ज़माने में सच बोला और उसकी कीमत भी उनको अदा करना पड़ी बार-बार। मतलब उनको नौकरी से निकाला गया, उन्होंने सच बोलने से कभी इनकार नहीं किया। और उनकी ख़ासियत ये है मसूद अशर साहब की कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है, उस ज़माने में जबकि वहाँ से कोई ख़बरें नहीं आती थी, डिक्टेटरशिप ने वहाँ पे बिल्कुल ताले लगाए हुए थे सेंसरशिप के, उस ज़माने में उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में, वो उन चंद पाकिस्तानियों में से थे जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में जो ज़ुल्म हो रहा था उसके बारे में उन्होंने सच लिखा, और सच के अलावा कभी उन्होंने कुछ नहीं लिखा। तो आज भी अगर आप मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में उर्दू में कोई कहानियाँ अगर लिखी गई हैं तो मसूद अशर साहब की वो एक ख़ुसूसियत है। तो उनका नाम जब तक उर्दू पढ़ने वाले ज़िंदा हैं, जब तक उर्दू बोली जाएगी, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में और सारी दुनिया में, तब तक मसूद अशर साहब का नाम जो है वो उर्दू सहाफ़त में और उर्दू कहानीकारी में ज़िंदा रहेगा। वैसे उनका ताल्लुक रामपुर से था, जो कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, और रामपुर जो है वो उसका एक बड़ा पुराना जो है वो लिंक है उर्दू ज़बान से, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे लोहारू के जो नवाब थे उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को भी दावत दी थी, और जहाँ पे आके मिर्ज़ा गालिब ने अपने वो मशहूर ज़माना खतूत लिखे थे, जिनकी वजह से वो मशहूर हैं। तो रामपुर से उनका ताल्लुक था। तो ये जो आज का लेक्चर है, और क्योंकि मसूद अशर साहब भी साहिर की तरह उनकी सोच कम्युनिस्ट थी और वो तरक्की पसंद सोच से ताल्लुक रखते थे, तो मेरे ख़्याल में ये बात सही भी है कि आज का लेक्चर जो है वो मसूद अशर साहब की जो है याद में जो है वो उसको मतलब मंसूब किया जाए। साहिर के बारे में क्या कहा जा सकता है? साहिर लुधियानवी जो हैं वो हमारे अहद के एक बहुत बड़े शायर हैं, और मेरे ख़्याल में 20वीं सदी के अज़ीम तरीन शायरों में अगर ना भी उनका नाम लें तो मकबूल तरीन शायरों में तो बिल्कुल उनका शुमार होता है। मेरे ख़्याल में उर्दू शायरी में फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के बाद अगर कोई शायर इतना मकबूल हुआ तो वो साहिर लुधियानवी है। इस चीज़ में कोई शक नहीं होना चाहिए। और फ़िल्मों की अगर बात करें, जिस तरह पंजाब दर्शन में मेरे मेहरबान ने अभी-अभी ज़िक्र किया, तो फ़िल्मों में साहिर लुधियानवी ने जिस तरीके से तरक्की पसंद सोच को मुतारिफ़ कराया, उसकी मिसाल हमें दूर-दूर तक नहीं मिलती। मतलब मजरू सुल्तानपुरी जो है वो उनमें और साहिर में बहुत फ़ासला है इस मामले में। और उसके बाद फिर हम आजकल के दौर में मतलब कतील शिफ़ाई की बात करते हैं, जो कि साहिर के साथ लाहौर में भी रहते थे, और फिर जावेद अख्तर जो कि आपको पता है हमारे ज़िंदा हैं अभी इंडिया में, वो उसके बाद आते हैं। लेकिन साहिर जो हैं वो उनकी बहुत सी जिहाद हैं, और ये क्योंकि उनका सदी साल है, तो मेरा ख़्याल ये था, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, इंग्लिश में उसका नाम है साहिर लुधियानवीज़ लाहौर, लाहौर साहिर लुधियानवी।
और उसका मरकज़ी ख़्याल ये है कि पिछले साल जब साहिर की 99वीं सालगिरह थी, तो मैंने 1 साल पहले सोचना शुरू किया कि साहिर जैसा अज़ीम शायर है, मैं तो एक बड़ा आम-सा इंसान हूँ, एक साहिर का मद्दाह हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी सा फ़ैन हूँ। मैं किस तरह से साहिर लुधियानवी को उसके 100वें साल में मैं कैसे उसको एक ट्रिब्यूट पेश कर सकता हूँ? मैंने 1 साल पहले सोचना शुरू किया और ज़ाहिर बात है साहिर के बारे में जितना भी लिखा जाए वो कम है। बहुत से लोग तो साहिर को एक बड़ा शायर भी नहीं मानते और मेरा ख़्याल ये है कि आजकल भी और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी भी और पढ़ी भी है कि बहुत से पाकिस्तान के लोग शायर और बहुत से हिंदुस्तान के शायर अभी भी साहिर से जलते हैं, साहिर की मकबूलियत से जलते हैं। वो उसको बहुत बड़ा शायर नहीं समझते या उसको एक बिल्कुल महदूद तबके का शायर समझते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा शायर है जिसकी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 50-50 से ज़्यादा जाली एडिशन शाया हो चुके हैं। मतलब अभी तल्खियाँ की बात हुई, तल्खियाँ जो है वो अभी तक बेस्ट सेलर है और तल्खियाँ उसका पहला मजमुआ था जो कि लाहौर में शाया हुआ था। ये भी एक वजह है कि मैं साहिर और लाहौर की बात क्यों कर रहा हूँ और तल्खियाँ अभी तक बेस्ट सेलर है। ये कैसा शायर है जो कि एक बिल्कुल लिमिटेड क्लास का शायर है और जिसको कोई बहुत से लोग इतना मकबूल शायर भी नहीं मानते, जिसके इंडिया और पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा जाली एडिशन तल्खियाँ के शाया हुए हैं और साहिर की बहन जो कि अब फौत हो चुकी हैं, जिनको मालूम भी नहीं था कि इतने जाली एडिशन उसके शाया हो चुके हैं। तो अगर ये मकबूलियत का म्यार नहीं है, तो फिर और किसी शायर की मकबूलियत का क्या म्यार है? वो नक्काद किधर हैं आज जो साहिर को कहते थे कि वो तो बस लम्हात का शायर है और वो लम्हे ख़त्म हो जाएँगे तो साहिर की शायरी ख़त्म होगी। साहिर अभी भी मकबूल है और रहेगा और और मतलब अगर इस बात से भी हम सल्फ़े नज़र कर लें कि वो मतलब जाली एडिशन कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी शायर की मकबूलियत का, तो वो फ़िल्मी गाने जो उसने लिखे हैं और उसके बाद जो उसकी गाता जाए बंजारा, जो उसकी मशहूर ज़माना गीतों की किताब है, अभी भी ये मैं आँखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ दिल्ली का। वहाँ पे कनॉट प्लेस में बहुत मशहूर बुक शॉप्स हैं। मैंने खुद वहाँ पे देखा है गाता जाए बंजारा की मुझे कोई एडिशन वहाँ नहीं मिली और जो सीरियस लिटरेचर की किताबें हैं वो वैसी की वैसी वहाँ पड़ी हैं। तो गाता जाए बंजारा जो उसकी गीतों की किताब है, मतलब उसे लोग सीरियस शायरी नहीं कहते। वो अभी भी सीरियस शायरी की किताबों से ज़्यादा बिकती है। तो ये कैसा शायर है जिसकी गीतों की किताब अभी भी बेस्ट सेलर है। तो मेरे लिए तो ये क्राइटेरिया काफ़ी है। तो साहिर जो है वो मतलब मेरी किताब जो है और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा साहिर और लाहौर पे, क्योंकि अगर मैंने सारा टाइम ले लिया तो फिर ज़ाहिर बात है किताब कौन लिखेगा और किताब पढ़ेगा कौन और मेरी किताब खरीदेगा कौन। तो इस वजह से मैं आपके यहाँ ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगा। कुछ मेरी 2-3 मेरे नुकात हैं, नुक्ते हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लाहौर ने साहिर लुधियानवी को साहिर लुधियानवी बनाया। क्यों बनाया? कुछ उसकी नज़में हैं, जिनमें से आप में से जिन्होंने तल्खियाँ का जो है वो मुतालिया किया है, उनको पता होगा कि वो नज़में भी लाहौर में ही जो हैं वो उसने लिखी या उनकी निशान नुज़ूल जो है, वो लाहौर के किसी वाक़े या लाहौर की किसी इमारत पे है। ये सब कुछ कह के जो है मैं चाहूँगा कि फिर जिन लोगों की कोई सवाल-जवाब हैं या मुंतज़िमीन के कुछ सवाल-जवाब हैं, वो मेरे नाल कोई गलबात करें तो उसमें फिर मज़ा आओ। साहिर लुधियानवी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मतलब मुझे इस किताब का ख़्याल कैसे आया? मुझे इस किताब का ख़्याल ऐसे आया कि जब हम साहिर की बात करते हैं तो हम 2 या 3 चीज़ें ही हमारे पास होती हैं साहिर के बारे में बात करने की। मतलब ये वही बात है जिस तरह सादत हसन मंटो जो कि साहिर की तरह लुधियाना में पैदा हुए थे। जब हम सादत हसन मंटो की बात करते हैं, 2012 में उनके 100 साल पूरे हुए। अच्छा, जब हम मिंटो की बात करते हैं तो हमें 2 ही चीज़ें याद आती हैं। जब या हम उनकी सेक्स वाली कहानियों की बात करते हैं, जो बैन हुई, पाकिस्तान में भी बैन हुई। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की हुकूमत थी, 3 कहानियाँ उधर बैन हुई, 3 कहानियाँ पाकिस्तान में। या हम बात करते हैं जी कि उन्होंने बँटवारे पे जो मतलब टोबा टेक सिंह जिस तरह की कहानियाँ लिखी।
मतलब उसके अलावा हमें कोई मंटो नज़र नहीं आता। हालाँकि मंटो ने अंकल साहब के नाम खतूत भी लिखे थे, मंटो ने एसेज़ भी लिखे हैं, उनके मज़ामीन जो मैंने तर्जुमा किए हैं, वो बहुत ख़ास चीज़ है और हमें उनमें वो शऊर नज़र आता है मंटो का, जो मेरे ख़्याल में उनकी कहानियों में नज़र नहीं आता। लेकिन उस मंटो की तो हम बात नहीं करते। इसी तरह जब हम साहिर की बात करते हैं, तो हम बहुत महदूद होके रह जाते हैं। हालाँकि साहिर इससे बहुत बड़ा है। जिन जिन पिंजरों में हमने शायर को कैद किया हुआ है, उससे वो बहुत बड़ा शायर है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं शायर की शायरी की। अच्छा, उसकी शायरी में हमें अमन, दुनिया में अमन की ख़्वाहिश थी, वो उसकी बहुत बड़ी नज़म है परछाइयाँ, जो उसने बम्बई में लिखी। अ, वो उसकी हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि उसने अपनी शायरी में जिस तरह फ़ेमिनिज़्म की बात की, औरतों के हकूक़ की बात की। अ, उन्होंने औरत के ऊपर जो ज़ुल्म होता है या इश्क व मोहब्बत की बात की, गिन चुन के यही चीज़ें होती हैं। या हम शायर की इश्कों की बात करते हैं कि जिन औरतों ने शायर से इश्क किया, और आशिकों में भी हम सिर्फ 1 या 2 की बात करते हैं। मतलब आपको पता है शायर का मशहूर ज़माना इश्क अमृता प्रीतम के साथ था, जो कि शायर की तरह एक बहुत बड़ी, मतलब एक महान कहानीकार थी। या हम बात करते हैं उनका जो सुधा मल्होत्रा के साथ इश्क था, या कहते हैं कि लता मंगेशकर के साथ भी कुछ उनका मामला रहा, और वाजिदा तबस्सुम जो कि उर्दू की एक हैदराबाद दक्कन में रहने वाली एक शोला बयान राइटर थी, उनके साथ बात करते हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में भी बड़े इश्क किए, उन ख़वातीन की हम बात नहीं करते। अच्छा, शायरों उसने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा है। बच्चों के लिए उसने एक पूरी किताब लिखी है, बच्चे मन के सच्चे, जो कि उसकी उनकी वफ़ात के बाद हुई। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी शायर को सिर्फ़ एक शहर से मंसूब कर लें, या बस हम कहें कि बस यही चीज़ें हैं और इसके अलावा शायर की कोई जहत नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मतलब शायर सिर्फ़ लुधियाना का शायर नहीं है, वो सिर्फ़ लाहौर का शायर नहीं है, उसकी शायरी में बहुत कुछ था। तो जब मैं ये चीज़ें सोच रहा था, तो मैंने कहा कि भई मैं तो लाहौर में रहता हूँ, मेरा लुधियाने से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लाहौर पंजाब का हिस्सा है, तो मैं किस तरह से उसको एक मतलब मैं एक अदना सा ट्रांसलेटर हूँ, मैं कैसे उसको ट्रिब्यूट पेश कर सकता हूँ? मतलब तो मैंने फिर इस बारे में रिसर्च करना शुरू की, तो फिर मुझे पता चला कि उसने लाहौर में 9 साल गुज़ारे थे। 9 साल बहुत अहम साल थे। 1943 से 1949 तक ये वो ज़माना था जिसमें बरे-सग़ीर पाक-ओ-हिंद में बहुत एक मुख़्तलिफ़ किस्म की तहज़ीब थी, और फिर जिस तरह से उस तहज़ीब को बर्बाद किया गया, जिस तरह पंजाब का बँटवारा हुआ, जिस तरह बंगाल का बँटवारा हुआ, जिस तरह कश्मीर का बँटवारा हुआ, तो ये बड़े पुरशोक साल थे, और इन्हीं सालों में साहिर और उस जैसे बहुत से बड़े अदीब लाहौर में थे। तो क्या एक लाहौरी के लिए इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है किसी बड़े शायर को उसके 100वें साल में खिराज तहसीन पेश करने के लिए, कि वो साहिर और लाहौर के बारे में बात करे। और ज़ाहिर बात है, ये जो है कोई आखिरी बात नहीं है, ये लास्ट वर्ड नहीं है। मेरे ख़्याल में और भी बहुत से लोग आएँगे मेरे बाद, जो कि शायद साहिर और दिल्ली की बात करें, क्योंकि शाहिर जब यहाँ से गए, तो उन्होंने कुछ हफ़्ते दिल्ली में गुज़ारे थे बेसरोसा-मानी में, और फिर सारी उम्र वो बम्बई में रहे, और बम्बई खा गया उनको, जिस तरह के और बहुत से बड़े-बड़े कहानीकारों और शायरों को खा गया। तो मैंने अभी तक साहिर और बम्बई पे कोई किताब नहीं देखी। तो हो सकता है आप में से कोई, आप यहाँ पे पंजाब दर्शन में प्रोफ़ेसर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, अ, हो सकता है किसी को इस लेक्चर के बाद या मेरी किताब पढ़ने के बाद ये तहरीक मिले कि वो भी रिसर्च करे। अच्छा, साहिर चलें, साहिर नहीं तो किसी और, आप पाश की बात कर लें, अवतार सिंह पाश, जो कि बहुत बड़ा एक, मतलब नकसाल शायर था, जो शायर की तरह जल्दी उसको कत्ल मतलब किया गया। या शिव कुमार बटालवी की बात कर लें, वो जहाँ-जहाँ गया उसके वसातत से किसी शहर में, तो हो सकता है किसी को तहरीक मिले। तो जब तक मैंने रिसर्च नहीं की, मुझे नहीं पता था कि साहिर का लाहौर के साथ एक बड़ा अटूट रिश्ता है। तो मुझे इस बारे में कोई वो ज़ोम नहीं है कि मैं कोई बड़ी रिसर्च करूँ। ये तो एक अदना से लाहौरी का एक ऐसे शायर की तरफ एक खिराज तहसीन है उसके सदी साल में, जो कि साहिर का एक फ़ैन भी है। बस ये बात है। तो 1 साल से मैं इस किताब पे काम कर रहा हूँ, और ये किताब इंशाल्लाह आ जाएगी, ये इंडिया से ही छपेगी, और किताब अभी तक आई नहीं है, क्योंकि मुझे मैंने ऐसे लोगों से भी साहिर के बारे में बात की जो अब 90 साल के थे, जो शायद उस
पीरियड से वाकिफ थे जिसमें साहिर लाहौर में था, उनमें से कई लोग अब चलाना कर गए हैं, वो उन दुनिया च नहीं रहे। तो उनसे बात की तो कोई नई जहत पता चली, अच्छा ये भी लाहौर में उसने किया। तो इसीलिए इस लेक्चर की मानवियत मेरे लिए बहुत बढ़ गई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं ये लेक्चर सुन के। ईमेल भी मेरा पता है दिलदार को, मुझे बाद में ईमेल भी कीजिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ पता है साहिर और लाहौर के बारे में तो मैं वो भी अपनी किताब में शामिल करना चाहता हूँ। साहिर और लाहौर के बारे में क्या कहा जा सकता है? देखिए, साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी के ज़्यादातर हालात तो हमको पता हैं। वो लुधियाना में पैदा हुए और जो थे लुधियाना में उन्होंने 2 या 3 शहरों में अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारी। शुरू का अरसा उन्होंने लुधियाना में गुजारा, उसके बाद वो 9 साल के लिए लाहौर आ गए, 1947 ईयर्स के लिए, सॉरी 1943 से 1943 से 1939 तक वो लाहौर में रहे। उसके बाद उनको लाहौर छोड़ के जाना पड़ा, और जिन हालात में वो छोड़ कर गए वो भी एक अफसाना है, उसको भी लिखने के लिए कोई काफका का चाहिए हमें, या बलवंत सिंह। उसके बाद वो कुछ अरसा दिल्ली रहे रोजगार में की तलाश में, और उसके बाद फिर वो बम्बई चले गए, और उसके बाद वो ना उस शहर से वो कभी कहीं नहीं गए। तो ये मुख्तसर सी कुछ उनकी शहरों के साथ कुछ उनकी वाबस्तगी है। तो लुधियाना में जो था उनकी इश्किया ज़िंदगी का आगाज़ पहले ही हो चुका था। उन्होंने जो है वहाँ पे एक लड़की प्रेम चौधरी से इश्क किया, वो लड़की तपे दिक से वफात पा गई। उसके फ़ौरन बाद उनका जो इश्क था वो ईशर कौर नामी एक लड़की से हुआ, और उस ज़माने में वो लुधियाना हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, और ज़ाहिर बात है तमाम जोशीले नौजवानों की तरह वो सियासी तौर पे भी बड़े मुतहर्रिक थे। लुधियाना हाई स्कूल के प्रिंसिपल के लॉन में वो पकड़े गए, वहाँ पे वो रियाज़ो न्याज़ की बातें कर रहे थे ईशर कौर के साथ। उस ज़माने में ज़ाहिर बात है, और आज भी ये मसला इज़्ज़त का मसला बन गया। उस ज़माने में रिस्ट्रिक्शंस थी, उस किस्म का खुला डुला माहौल नहीं था, और अभी भी पंजाब में और पाकिस्तान में और इंडिया में इस तरह का माहौल है। तो पकड़े गए तो लड़की वाले तो फ़ौरन विड्रॉ कर गए, साहिर लुधियानवी को निकाल दिया गया कॉलेज से। वो दिल गिरफ्ता थे, भूलना चाहते थे इस चीज़ को, और फ़िक्र माश भी थी, तो वो लाहौर चले आए। लाहौर वो 1943 में आए हैं, और उस ज़माने का लाहौर वो नहीं था जो आज का लाहौर है, या आज का कलकत्ता है, या आज का दिल्ली है, या लखनऊ है, या चंडीगढ़ है। वो 2 तहज़ीबों का गहवारा था। पंजाब के बेहतरीन अदीब उस ज़माने में लाहौर में लिख रहे थे, और उर्दू ज़बान के बेहतरीन अदीब, जिनमें बाद में साहिर का भी शुमार हुआ। तो वो लाहौर एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन लाहौर था, एक मखलूत लाहौर था। और जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ तो एक सवाल मेरे ज़हन में ये भी है कि उस लाहौर को क्या हुआ? कहाँ गया वो लाहौर, वो पाक टी हाउस का लाहौर, और उस जैसे वो सारे शहर, वो तहज़ीब किधर गई? ये एक सवाल भी मेरे ज़हन में होता है, और आप लोगों के लिए भी एक सवाल है कि क्या वो वापस आ सकता है, वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म? मतलब वो कलकत्ता जहाँ पे हिंदू सिख मुसलमान की कोई तफरीक नहीं थी, जहाँ पे इश्क व आशिकी के मामलात जो थे वो मज़हब की जो थी उसमें मज़हब का कोई मसला नहीं था, वो तबके से, क्लास से, वाबस्तगी से, ज़ाती इंटरेस्ट्स की बेस पे वो चीज़ें होती थी। मजहबी मुनाफरत नहीं थी उस ज़माने में, अब तो बहुत है हमारे दोनों मुल्कों में, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। तो वो लाहौर जिसमें साहिर आए, वो दिल गिरफ्ता हालत में आए, और ज़ाहिर बात है वो शायराना दिल रखते थे, दर्दमंद दिल रखते थे उस ज़माने में। फिर इश्क दो पे दर पे नाकाम इश्कों ने उनको और भी ज़्यादा बेहाल कर दिया था, और अपने ज़माने के नौजवानों की तरह वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, साम्राज्य के ख़िलाफ़ थे, और चाहते थे कि अंग्रेज़ साम्राज्य यहाँ से चला जाए और एक सुर्ख सवेरा हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए। तो उस ज़माने में 1943 में साहिर लाहौर आए, और जैसे कि मैंने कहा वो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर था। उस ज़माने में पंजाब और उर्दू के बेहतरीन अदीब लाहौर में थे। उस वक्त भी लाहौर और अमृतसर जो थे वो पंजाब के दिल थे, और आज भी हैं। मतलब लाहौर और अमृतसर, अगर आपने कोई बैरोमीटर देखना है पंजाब का सियासी और अदबी तहरीकों का, तो आप लाहौर और अमृतसर को देखें। ये बात अभी भी जो है वो ट्रू है।
तो साहिर दिल गिरफ्तार हालत में आए और दयाल सिंह कॉलेज जो अभी भी है यहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया और सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए, और जाहिर बात है फिर निकाले गए, दोबारा अपनी सियासी सरगर्मियों के तहत लिख रहे थे, लिखना चाहते थे। और ये मैं बाद में आपसे जिक्र करूंगा कि वो किस तरह के लोग थे जिनमें साहिर उठते बैठते थे। देखें, कहा जाता है कि किसी भी शहर का पानी जो है या दरिया, उसका एक बड़ा असर होता है, मतलब आपकी मेकअप में, मतलब जिस तरह दरिया रावी है लाहौर में, या गंगा है जो है वो इंडिया में, या दरिया नील है मिस्र में, या दजला फिरात है इराक में, या जिसको, लेकिन मेरे ख्याल में किसी राइटर के लिए, उसकी बूदोबाश के लिए वो कंपनी भी जरूरी होती है। मतलब जिन लोगों में साहिर का उठना बैठना था, वो बाद में साहिर की तरह बहुत बड़े बड़े लोग बन गए, और उसमें काफी लोग लुधियाना के ही थे। अब ये एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है, मतलब आप सिर्फ ये अंदाजा लगाएं कि लुधियाना ने उर्दू जबान को कितने बड़े बड़े अदीब दिए। मैं अभी आपसे उनका जिक्र करता हूँ। इस पे एक पूरा थीसिस लिखा जा सकता है। देखें, सादत हसन मंटो से शुरू हो, वो लुधियाना की तहसील समराला में पैदा हुए। उसके बाद आ जाए साहिर लुधियानवी पे, उन्होंने अपने नाम के साथ ही लुधियाना लगाया हुआ है। फिर आप आ जाएं उनके यार हमीद अख्तर पे, जो कि साहिर का सबसे गहरा यार था, जो बाद में लाहौर आया, और साहिर की माँ, और साहिर जब लाहौर आए तो हमीद अख्तर भी उसको अपनी माँ ही समझता था। वो एक घर में रहते थे, हमीद अख्तर और साहिर। और हमीद अख्तर वो शख्स है जिसको इंतजार हुसैन ने, जो कि उर्दू का बहुत बड़ा अदीब है, इंतजार हुसैन जिसका तरक्की पसंद सोच से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रुजत पसंद था, कंजर्वेटिव अदीब, तो उसने हमीद अख्तर को कहा है कि ही वॉज द क्रॉनिकलर ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। इतना अहम शख्स था हमीद अख्तर। कम्युनिस्ट पार्टी से भी इसका ताल्लुक था। ये भी लुधियाना में पैदा हुआ। इब्ने इंशा का नाम किसने नहीं सुना हुआ? इंशा जी उठो अब कूच करो। 1927 में, उस जमाने में जैसा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज वो नहीं थी, तो लुधियाना जो है वो जालंधर में पैदा हुए, लेकिन जालंधर उसमें उस जमाने में लुधियाना में था। उसने भी उर्दू अदब को बहुत सी लाजवाल नज़में, सफरनामे और ह्यूमर दिया है, और वो बड़ी जल्दी उसका इंतकाल हो गया थ्रोट कैंसर से। वो भी पंजाबी था और साहिर के साथ उठता बैठता था लाहौर में। उसके बाद जाहिर डार का नाम शायद आप में से नहीं सुना होगा किसी ने। जाहिर डार थोड़ा सा इन तमाम ग्रुप ऑफ राइटर्स से बाद में पैदा हुए 1930s में। उनका अभी अभी फरवरी में इंतकाल हुआ है। जाहिर डार लुधियाना में पैदा हुए और एब्स्ट्रैक्ट शायरी करते थे, बाद में बिल्कुल शायरी से किनारा कश हो गए और सिर्फ किताबें पढ़ते रहे। सारा उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय किताबें पढ़ने के। और इंतजार हुसैन जिसका भी अभी जिक्र हुआ, उसके वो सबसे गहरे दोस्त थे, वो भी लुधियाना में पैदा हुए। तो देखें, और मेरा ख्याल है और भी बहुत से अदीब और शायर होंगे जिनका मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि लुधियाना ने इतने बेमिसाल शायर और अदीब जो हैं वो उर्दू जबान को दिए हैं। इस पे भी किसी को थीसिस करना चाहिए। मैंने अभी तक इस पे कोई थीसिस नहीं देखा है। आप लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं चंडीगढ़ में, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, उर्दू, हिंदी, तो इस पे एक पूरा थीसिस लिखा जा सकता है कि ये इतने बड़े बड़े अदीब लुधियाना ने कैसे पैदा कर लिए, जो बाद में उर्दू अदब को इतने बड़े बड़े अदीब सने, सारे शायर थे, कवि। तो साहिर लाहौर आए और जारी बात है उन्हें लिखने लिखाने का भी शौक था, और उन्होंने अपनी काफ़ी नज़में जो हैं वो, तलखियाँ उनका पहला मजमुआ था, जैसे कि मैंने जिक्र किया, वो बेस्ट सेलर है, अभी भी था, उस वक्त भी था, कोई उसको छापने को तैयार नहीं था। हालांकि उसकी एक नज़म ताजमहल पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुकी थी, हर एक की ज़बान पर ताजमहल थी। ये जब नज़म उन्होंने अमृतसर में सुनाई, उसके बाद हर जगह साहिर जाता था तो उससे इसी नज़म की फरमाइश होती थी। लेकिन तलखियां छापने को कोई तैयार नहीं था। 20-22 साल का नौजवान, बेरोजगार और चीचकज़दा शक्ल उसकी, स्मॉल पॉक्स, आशिक में, कोई उसको छापने को, रिस्क लेने को कोई तैयार नहीं था। तो लाहौर में ही बाबा गुरबख्श सिंह का एक बड़ा मशहूर नामी ग्रामी रिसाला था प्रीत लड़ी के नाम से। प्रीत लड़ी का एक बेमिसाल मकाम है, आपको पता होगा, पंजाबी राइटर्स को एक आइडेंटिटी देने में। तो प्रीत लड़ी में उस जमाने में अमृता प्रीतम नाम की भी एक शायरा लिख रही थी,
और अमृता प्रीतम भी उस जमाने में लाहौर में थी, क्योंकि अमृता प्रीतम की भी बचपन में मंगनी प्रीतम सिंह नामी एक ताजिर से हुई थी और उसने बहुत कोशिश की कि वो इस शादी को छोड़ दे, लेकिन प्रीतम सिंह क्योंकि अमृता प्रीतम से बहुत मोहब्बत करते थे, उन्होंने ना छोड़ा। तो उस जमाने में प्रीतम सिंह भी और अमृता प्रीतम भी लाहौर में मौजूद थे और अनारकली, लाहौर का अनारकली बाजार जहां साहिर भी कभी गए होंगे, वहां पे प्रीतम सिंह की दुकान थी और घर जो उनका था वो लाहौर की, वहां पे हमारा एक बड़ा मशहूर यूनिवर्सिटी है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, उस जमाने उसके साथ मोहनी रोड है जहाँ पे कृष्ण चंद्र भी रहते थे, जो कि बहुत बड़ा अदीब है उर्दू का। मेरे ख्याल में उर्दू 20वीं सदी के 5 सबसे बड़े उर्दू फिक्शन निगारों में कृष्ण चंद्र का शुमार था। मोहनी रोड पर प्रीतम सिंह और अमृता प्रीतम का एक मकान था, अब न जाने वो मकान किसके पास है, उधर वो ये तो प्रीतम से तो अमृता प्रीतम भी प्रीत लड़ी में लिखती थी। तो प्रीत लड़ी के जो मुदीर थे गुरबख्श सिंह, उसने तलखियां को छापने का इरादा किया और एक जेबी एडिशन, पॉकेट एडिशन में जो है वो उसने तलखियां छापी और जैसे ही ये लाहौर में छपी, धूम मच गई। इस कलेक्शन की धूम मच गई और इतनी धूम मची कि कहा जाता है कि उस जमाने में हर फिल्म डायरेक्टर, मतलब उस जमाने में बॉलीवुड नहीं इसको कहते थे, मैं तो खैर अभी भी इस टर्म को पसंद नहीं करता, उस जमाने में जो भी सिनेमा का कला डायरेक्टर था उसकी जेब में तलखियां का पॉकेट एडिशन होता था, क्योंकि वो इंतजार करता था कि मुझे साहिर लुधियानवी की नजर आ जाए तो मैं उसी वक्त साइन कर लूं इस शख्स को अपनी फिल्मों में गीत लिखने के लिए। और वाकया ये है कि जब लाहौर से निकल के साहिर दिल्ली गए और दिल बर्दाश्ता होकर बम्बई का रुख किया, तो जो पहला डायरेक्टर था जिसने साहिर को इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसकी जेब में तलखियां का एडिशन था। और जब उसने साहिर से पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो उसने कहा जी मेरा नाम साहिर लुधियानवी है। उसने कहा तुम वो वाले साहिर लुधियानवी हो जिसने तलखियां लिखी है? उसने कहा जी। तो उसको यकीन नहीं आ रहा था। तो लाहौर को तो साहिर लुधियानवी बनाने वाला जो शहर था वो लाहौर है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि ये जो एडिशन तलखियां जो था ये लाहौर में छपा था। जिसने साहिर को साहिर लुधियानवी बनाया वो साहिर लाहौरी भी हो सकते थे, शायद अगर वो लाहौर छोड़कर ना जाता तो वो साहिर लाहौरी होता, लेकिन लुधियाना से लाहौर का कोई ज़्यादा फासला भी नहीं है, तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो साहिर लाहौरी के नाम से नहीं जाना गया तो और साहिर लुधियानवी बन गया। इस जो तलखियां है इसकी सबसे मशहूर नज़मों में से एक ताजमहल है, और मज़े की बात यह है कि ताजमहल एक लाहौर की इमारत पे बेस्ड थी। मतलब जो ताजमहल का मरकजी ख्याल है वो लाहौर में एक मुगलों ने एक इमारत बनाई थी, उसके ऊपर बेस्ड है। और वो नज़म मैं आपको भी सुनाऊंगा। वो नज़म ताजमहल जितनी मशहूर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ताजमहल से ज़्यादा बेहतर नज़म है वो। हुआ ये कि नज़म ताजमहल मशहूर हो गई, तो साहिर के एक बहुत पुराने दोस्त थे कृष्ण अदीब, कृष्ण चंद्र नहीं, कृष्ण अदीब, जो बाद में जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत मशहूर सॉन्ग राइटर बने। उसने एक दिन साहिर से पूछा, यार ये जो तुम्हारी नज़म मशहूर हो गई है ताजमहल, तुम क्या कभी आगरा गए थे? ताजमहल तुमने देखा था जब तुमने नज़म पढ़ी थी? तो साहिर क्योंकि लगी लिपटी तो कहते नहीं थे, वो तो डायरेक्ट बात करते। उसने कहा नहीं यार, हकीकत ये है कि जब मैंने नज़म लिखी थी तो ना मैं आगरा गया ना मैंने ताजमहल देखा। बात सिर्फ ये थी कि मैं तो नूरजहां के मकबरे पे एक नज़म लिखना चाहता था जो कि लाहौर में है, और वो नज़म कुछ बन नहीं रही थी, कुछ बात बन नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि फिर इसको किसी मशहूर मतलब मकबरे पे बनाया जाए। तो जाहिर बात है ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर है, ताजमहल की तस्वीरें भी मैंने देखी हुई हैं, और कुछ मैंने कार्ल मार्क्स को भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो बस वो नज़म मैंने बना दी और वो मशहूर हो गई। तो नज़म ताजमहल मैं तो आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जो एक नज़म उसने नूरजहां के मकबरे पे कही है, नूरजहां के मकबरे पे असल में वो नज़म उसने कहनी थी जो बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हो गई। तो ये नज़म मैं आपको सुनाता हूं क्योंकि ये नज़म कम मशहूर है। नूरजहां के मज़ार पर पहलुए शाह में ये दुख्तर जमहूर की कब्र कितने गुमगश्ता फसानों का पता देती है।
पहलुए शाह में ये दुख्तर जमहूर की कब्र कितने गुमगश्ता फसानों का पता देती है, कितने खूंरेज हकायक से उठाती है नकाब, कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। कैसे मगरूर शहनशाहों की तस्की के लिए साल हा साल हसीनाओं के बाजार लगे, कैसे बहकी हुई नजरों के तायुश के लिए सुर्ख महलों में जवां जिस्मों के अंबार लगे, कैसे हर शाख से मुंह बंद महकती कलियां नोच ली जाती थी तज़य्युन हरम की खातिर, और मुरझा के भी आजाद ना हो सकती थी जिल्ले सुभान की उल्फत के भरम की खातिर। कैसे एक फर्द के होंठों की जरा सी जुम्बिश सर्द कर सकती थी बेलौस वफाओं के चराग, लूट सकती थी दमकते हुए हाथों का सुहाग, तोड़ सकती थी इश्क से लबरेज अयाग। सहमी सहमी सी फिजाओं में ये वीरां मरकद इतना खामोश है फरियाद को ना हो जैसे, सर्द शाखों में हवा चीख रही है ऐसे, रूह तकदीसो वफा मरसिया ख्वां हो जैसे। तू मेरी जान मुझे हैरत हसरत से ना देख, ये आखिरी बंद पे जरा गौर करें। तू मेरी जान मुझे हैरत हसरत से ना देख, हम में कोई भी जहां नूर और जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। तो ये नज़म मेरे ख्याल में ताजमहल से ज़्यादा मैच्योर नज़म है, क्योंकि देखिए ताजमहल में तो वो अपनी महबूबा को कह रहा है कि मेरी महबूबा मेरे को कहीं और मिला कर मुझसे। ये जो है आपको पता है उन्होंने कहा है कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। मतलब वो ये नहीं कह रहा फेमिनिज्म नहीं, वो ये नहीं कह रहा जगह तब्दील करो भाई, कहीं और मिलो। लेकिन वो जो पैट्रियार्की है उसके खिलाफ वो कुछ नहीं कह रहा। यहाँ इस नज़म में जो ताजमहल के बाद लिखी गई नूरजहां के मजार पर, वो कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ के भी जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मतलब मेरे हाथों में तुम्हारे हाथ हैं, मैंने तुम्हें जंजीर से नहीं पकड़ा हुआ। तो ये क्वालिटेटिवली मेरे ख्याल में मशहूर तो ताजमहल हुई, लेकिन जो नूरजहां के मजार पर नज़म है वो मेरे ख्याल में एक ज्यादा मेच्योर साहिर लुधियानवी को जो है वो, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि तुम मुझको छोड़ के भी जा सकती हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जो है जकड़ूंगा नहीं। तो ये नज़म जो है ये लाहौर में जो वाक़े है रावी के किनारे नूरजहां का मज़ार, जो जहांगीर जो मुग़ल शहनशाह था उसकी जो थी उसकी जो प्यारी बीवी थी जो कि बड़ी जल्दी चली गई इस दुनिया से, उसका मज़ार भी वही है। उस मज़ार के ऊपर ही नज़म साहिर लुधियानवी ने लिखी थी। अब कुछ शायर के इश्क की बात हो जाए। अब शायर का इश्क जारी बात है अमृता प्रीतम से सबसे ज़्यादा मशहूर है। उस पे सुना था कि हिंदुस्तान में कोई फिल्म भी बनाना चाहता है, लेकिन जो इमरोज़ हैं उनकी फैमिली ने मना कर दिया। यहाँ गुजरावाला में भी एक शहजाद रफ़ीक हमारे एक फिल्म साज हैं, वो भी अमृता प्रीतम और साहिर पे एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो फिल्म बनेगी या नहीं। लेकिन साहिर जो थे इसी ज़माने में लाहौर में थे और अमृता भी लाहौर में थी, और इनकी मुलाकात एक जगह है प्रीत नगर, आपको शायद पता हो लाहौर और अमृतसर के दरमियान एक जगह है जो अभी भी कायम है। वहाँ पे एक आर्टिस्ट्स का कम्यून बनाया हुआ था कि वहाँ पे लोग मतलब बगैर किसी रंग नस्ल मजहब की तफरीक के वो वहाँ पे मिल सकें, मुशायरे करें। तो इन्हीं मुलाकातों में से किसी मुशायरे में, क्योंकि शायर साहिर भी शायर कहते थे, शेर कहते थे उर्दू में, और अमृता ज़ाहिर बात है पंजाबी में उस वक्त अपनी पहचान बना रही थी। तो उनकी मुलाकात हुई और वो भी नौजवान थे, ये भी नौजवान थी, इनकी उस वक्त शादी हुई थी, और साहिर ज़ाहिर बात है अपने दिल एक उदास दिल थे। तो कहा जाता है कि ये लोग साहिर अमृता के करीब आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमृता को पेशकश की कि मैं तुम्हारी पंजाबी नज़मों का तर्जुमा उर्दू में करूँगा। तो इसकी वजह से वो फिर दोनों आपस में करीब आ गए।
और लाहौर उस ज़माने का एक बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन स्पेस थी। वो उन्होंने पूरे मौके दिए अमृता और साहिर को। मतलब साहिर ने कई नज़्म मतलब 2-3 नज़्में लिखी हैं अमृता के लिए, लेकिन उसने अमृता का नाम कहीं नहीं लिखा। देखें ज़रा। लेकिन अमृता प्रीतम ने अपनी जो उसकी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है रसीदी टिकट, उसमें उसने साहिर का नाम भी लिया है और उसमें उसने अपने इश्क की दास्तान भी बताई है। मतलब उसे कभी कोई मसला नहीं हुआ साहिर का नाम लेते हुए। उसने रसीदी टिकट में बताया है कि साहिर उसके घर आते थे। ये जो घर जो मैंने जिसका जिक्र किया प्रीतम सिंह के साथ, वो मोहनी रोड लाहौर में जिस घर में, वहां पे साहिर से मुलाकातें भी होती थी। और ये अब मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ कि हो सकता है उनकी टांगों में भी मुलाकातें हुई हों। लाहौर में उस वक्त पार्क टी हाउस भी था, उधर भी उनकी मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन लाहौर में उनका इश्क परवान चढ़ा। तो इस लिहाज से भी लाहौर ने साहिर को साहिर लुधियानवी बनाया, क्योंकि उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा इश्क मेरे ख्याल में अमृता प्रीतम से वो लाहौर में परवान चढ़ा। और जितने साल लाहौर में साहिर रहे और इवन बाद में जब वो हिंदुस्तान भी चले गए, ये इश्क रहा। अमृता प्रीतम जो है वो 1947 में यहाँ से चली गई बंटवारे के बाद, क्योंकि वो पेट से थी। वो नवतेज जो उनका बेटा था वो उनके पेट में था और वो बहुत घबराई हुई थी। और आपको पता है कि जब वो ट्रेन से लाहौर छोड़कर जा रही थी तो उन्होंने अपनी मशहूर नज़म कही थी वारिस शाह को की रूह को मुखातिब करके कि अज अखा वारिस शाह नु किथा कब्रों विचों बोल। तो ये उनकी मशहूर ज़माना नज़म है। साहिर जो थे वो 1947 में सॉरी 1949 में 1939 में लाहौर छोड़ के गए। लेकिन साहिर ने लाहौर में और भी इश्क किए। मतलब ये मुझे बात तब पता चली जब मैंने ए हमीद, जो कि एक बहुत बड़े राइटर थे, जो साहिर के साथ उनका बहुत उठना बैठना था, वो भी अमृतसर से उनका ताल्लुक था। बाद में वो लाहौर आ गए, बहुत कामयाब राइटर थे। उन्होंने ए हमीद ने एक बहुत बेहतर एक भरपूर एक खाका लिखा है साहिर का। उसमें उन्होंने बताया कि साहिर का यहाँ पे एक इश्क, एक बहुत रेलवे के मुलाजिम थे, बहुत ऊंचे ओहदे के, उनकी बीवी से भी वो मिलने जाया करते थे। और उस जमाने में उनका यार अहमद राही उनके साथ होता था। और अहमद राही जारी बात है पंजाब का एक बहुत बड़ा शायर था, जिसने तरंजन के नाम से एक लाजवाल मजमुआ जो है वो शाया किया, जो अभी भी बेस्ट सेलर है। तो यहाँ पे लेकिन वो बात बनी नहीं, क्योंकि अहमद राही शायर को कहते थे कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के, क्यों वो एक बड़े रेलवे अफसर को छोड़कर जो है वो तुमसे इश्क लड़ाएगी, वो तो नहीं छोड़ेगी। और मेरे ख्याल में साहिर ने उनकी बात मान ली थी। फिर साहिर ने यहाँ पे एक और एक खातून से इश्क किया, जिनको वो शेर लिख के देते थे और वो बाद में मुशायरों में भी वो शेर पढ़ती थी साहिर के लिखे हुए। और बाद में वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़े ओहदे पे भी फायज हुई। अब देखें, ए हमीद तो डिप्लोमेटिक गेम खेलते हैं, उन्होंने उन खातून का नाम नहीं लिया। लेकिन मैंने हमारे जो आजकल सीनियर जो शायरात हैं, हमारी किश्वर नाहीद हैं, उनसे मैंने कुछ पूछा कि लाहौर में उस ज़माने में ऐसी कौन सी शायरात थी जो शायरी करती थी, जो हो सकता है साहिर से। तो मुझे कुछ गेस मेरा है कि वो एक शायरा कौन सी है, लेकिन मैं आपको उनका नाम अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको बस सारी बातें बता दी तो फिर मेरी किताब कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक बड़ी स्ट्रांग गेस है कि वो कौन शायर थी और शायरा थी। और वो जारी बात है वो मतलब बड़ी शायरा तो नहीं बन सकी, लेकिन उन्होंने वो भी तरक्की पसंद थी और उस ज़माने में वो भी लाहौर में ही थी और कम सिन थी, वो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, लेकिन वो उसी पीरियड में थी। उस ज़माने में वैसे ही इतनी और ख़वातीन उर्दू में शायरी कर भी नहीं रही थी, और जो थी वो बहुत बाद में आई। तो एक शायरा का मुझे पता है, तो वो जब आप किताब मेरी पढ़ेंगे तो उसमें मैं उसको मतलब डिस्कस करूंगा। और जारी बात है, जब आप रिसर्च करते हैं ये बातें आपको पता चलती हैं, जब आप इंटरव्यू करते हैं, ये बैठे बिठाए ये बातें आपको सिर्फ किताबों में, मतलब ए हमीद की स्केच में ये लिखा हुआ है कि वो एक शायरा थी और बाद में एक बड़े ऊंचे ओहदे पे चली गई, उनका नाम नहीं मेंशन किया। तो ये भी एक रिसर्च होती है, ये मुझे पता चला। तो लाहौर में साहिर का किन लोगों के साथ उठना बैठना था, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ये सब वो नौजवान थे जो बाद में बहुत बड़े बड़े शायर बन गए, बहुत बड़े बड़े लिखारी बने।
कुछ हिंदुस्तान चले गए, और मैं उनका नाम लूंगा तो आपको पता चल जाएगा। और यही लाहौर में वो जगह अभी भी हैं जहाँ पे मैं आप जाऊं, वो सड़कें तो मुझे वो लोग याद आते हैं, साहिर जहाँ पे रहा होगा वो अभी भी मौजूद है। यहाँ पे एक निशात सिनेमा है बड़ा मशहूर लाहौर में। निशात सिनेमा के ऑपोजिट जो है वो एक पगोडा, आपको पता है चीन में और बुद्धिस्ट कंट्रीज में पगोडा एक होता है उनका, जिस तरह हमारी मस्जिद होती है या एक मंदिर होता है या समाधि, वो एक पगोडा, एक सुर्ख किस्म का पगोडा की शक्ल का एक मकान होता था निशात सिनेमा एबर्ट रोड पे, जो एबर्ट रोड अभी भी है। वहां पे इब्ने इंशा और साहिर एक ही घर में रहते थे, तो वो लाहौर की एबर्ट रोड पे वो रहते थे। और इब्ने इंशा, जारी बात है, आप जिक्र हो चुका है, वो भी पंजाबी थे। साहिर के साथ उनकी बड़ी लगती थी, बड़ी बनती थी, बड़े मजाक शजाक करते थे। इसी तरह रॉयल पार्क लाहौर में साहिर के बाकी लोग दोस्त रहते थे। रॉयल पार्क अभी भी लाहौर में है, और वो कौन लोग थे, मैं अभी नाम लूंगा आपको पता चल जाएगा कितने बड़े बड़े लोग थे। अहमद राही, जिनका जिक्र अभी अभी हुआ, आरिफ अब्दुल मतीन जो कि अमृतसर से शेर कहते हुए आए थे, उर्दू में शायरी करते थे, बाद में हमारे कुछ बहुत अच्छे जो है मैगजीन्स के एडिटर भी बने उर्दू में। उसके बाद फ़िक्र तौनसवी थे, मज़ार निगार। उसके बाद ए हमीद का तारुफ ये है कि एक तो स्केच जो साहिर लुधियानवी का जो उन्होंने लिखा, जो मेरी बुनियादी रिसर्च मटेरियल वो स्केच थी, जिससे मुझे पता चला कि साहिर ने लाहौर में इतना मतलब 7 साल गुजारे। ए हमीद का ताल्लुक अमृतसर से था और वो कृष्ण चंद्र से बहुत मुतासिर थे, तो उन्होंने, उनके काम ने 3 नस्लों को मुतासिर किया। 3 जनरेशंस ऑफ पीपल उनके काम से मुतासिर हैं। एक वो जनरेशन थी जिसके लिए वो लिख रहे थे, उन्होंने जो है उनके जो नॉवल थे वो एक बड़े रोमानवी अंदाज में, मतलब कृष्ण चंद्र से इंस्पायर थे बहुत ज़्यादा, तो रोमानवी किस्म के नावल लिखे, मतलब बर्मा की सैर की, कोकोनट की दरख्तों की, इश्क हुआ, ट्रेन में लोग जा रहे हैं, वो उनकी ट्रेवल्स पे बेस्ड था, तो उनके नावल उस जमाने में बड़े मशहूर हुए। उसके बाद मेरी जो जनरेशन थी, मतलब आई वॉज बॉर्न इन मैं 1979 में पैदा हुआ, हमने उनके जासूसी नावल पढ़े हैं। मतलब अंबर नाग मारिया की सीरीज जो है वो बुनियादी एक हमारा, जब मैं बड़ा हो रहा था 8 9 10 साल का, वो बुनियादी डिटेक्टिव स्टोरीज, वो मेरी बुनियादी ट्रेनिंग उन्होंने की, वो ए हमीद ने लिखी है। अच्छा, फिर जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए भी ए हमीद ने ऐनक वाला जिन के नाम से एक टेलीविजन सीरियल लिखा। मतलब जिस तरह आपके यहाँ रियासत का दूरदर्शन है, उस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में पीटीवी है, पाकिस्तान टेलीविजन। ये जो ड्रामा ए हमीद ने लिखा ऐनक वाला जिन, इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए ड्रामों के, बच्चों का ड्रामा था, इतना मशहूर हुआ ये। और अब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि अब सोचा जा रहा है कि ऐनक वाला जिन का दूसरा भी कोई पार्ट बनाया जाए। तो ये ए हमीद का हमारे ऊपर उर्दू दुनिया पे एहसान है। उन्होंने बड़ी लंबी उम्र जी, और वो लाहौर में ही उनका समनाबाद में घर था, और वो अमृतसर को याद करके रोते थे, और वो उनकी वफात मतलब 10 साल हो गए हैं। तो ए हमीद जो थे वो लोग, और कतील शिफाई जो कि बाद में गज़ल के एक बहुत बड़े शायर बने, ये सब लोग जो थे रॉयल पार्क की बिल्डिंग में रहते थे। और ये कौन सा लाहौर था? ये वो लाहौर है जो शायद अब नहीं पैदा हो सकता। इस लाहौर में एक मुसलमान कतील शिफाई का ताल्लुक हज़ारा से था। वो एक ट्रक ड्राइवर का बेटा था जिसको शायरी का थोड़ा बहुत शौक था। उसने कोशिश की कि ट्रक चलाऊं, नहीं कामयाबी हुई, तो फिर स्पोर्ट्स गुड्स का एक कारोबार उसने शुरू किया, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई, तो फिर भागकर लाहौर आ गया। यहाँ पे एक अखबार का वो मुदीर हो गया, और देखिए किस्मत ये हुई कि चंद्रकांता नाम की एक हिंदू खातून से उसका स्कैंडल उस जमाने में था। चंद्रकांता भी रॉयल पार्क की उसी बिल्डिंग में जहाँ ये सब लोग थे, वहाँ दूसरी मंजिल पे कतील शिफाई के साथ वो रहती थी। और ये वो औरत थी चंद्रकांता जिसने पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान जाने से इनकार कर दिया। ये वो लाहौर था। और चंद्रकांता वो खातून है जिसको सादत हसन मंटो ने अपने अफसाने मोचना में उसने
लाजवाल कर दिया इस औरत को, क्योंकि उस अफसाने मोचना की हीरोइन एक ऐसी औरत है जिसके सीने पर बहुत ज्यादा बाल हैं और वो उन्हें ट्वीजर से प्लक आउट कर रही होती है। तो मोचना जो है वो कतील शिफाई की इसी महबूबा पे जो हिंदू थी उस पे बेस्ड है। देखें किस किस्म का लाहौर है ये। उसके बाद ये वही लाहौर है जहाँ पे साहिर लुधियानवी जो कि मुसलमान खानदान में पैदा हुआ, वो एक सिखनी अमृता प्रीतम से इश्क लड़ा रहा था और कोई मसला ही नहीं था। मतलब उस जमाने में ये चीजें मतलब मैटर ही नहीं करती थी कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, इंसानियत थी, इंसान दोस्ती मोहब्बत, इसकी बेस पर जो है लोग एक दूसरे के करीब आते थे। तो अब वो लाहौर किधर गया, कहाँ गया वो कलकत्ता, कहाँ गया वो लखनऊ, उसको अब हम इन किताबों में ढूंढते हैं। कहाँ गया वो हैदराबाद। अब तो आपको पता है हमारे मुल्कों में, हिंदुस्तान में देखें लव जिहाद हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले खबर पड़ी थी कि ऑनलाइन कुछ मुसलमान औरतों को बेचने का स्कैंडल हुआ है। पाकिस्तान में देख लें क्या हो रहा है, कम सिन हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती 45-50 साल के मुसलमान मर्द ज़बरदस्ती मुसलमान बना के उनसे शादियां करते हैं और कुछ होता ही नहीं है। अब हम इस किस्म के ज़माने में रह रहे हैं। तो वो देखें, ये था साहिर का लाहौर जिसका मैंने आपको जिक्र किया। तो किताब लिखने का एक मकसद ये भी मतलब था कि ये सोचने पे मजबूर किया जाए कि क्या उन शहरों को, उस तहजीब को हम वापस ला सकते हैं जो बंटवारे में कहीं गुम हो गई, जहाँ हिंदू मुसलमान इवन 43 से लेकर इवन 49 तक, जब तक साहिर लाहौर में थे तब तक जो है वो ये फसाद नहीं हुआ था, शुरू हो गया था होना। और ये नौजवान क्या करते थे, ये इनके सिगरेट लाने ले जाने पे मसले होते थे, भाई सिगरेट पीना है, अच्छा रॉयल्टी इनको नहीं मिलती थी। ए हमीद कहानीकार था, उसको ज़रा थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते थे और वक्त पे मिलते थे। बेचारे साहिर लुधियानवी क्योंकि शायर था, वो जनाब ए हमीद ने जिक्र किया है कि चौधरी नज़ीर साहब एक बहुत बड़ा हमारा मैगज़ीन है सवेरा, तरक्की पसंद मैगजीन था, जो अभी भी छप रहा है लाहौर में। अभी पिछले साल इसका 100वां इशू छपा है सवेरा, उसके प्रोप्राइटर थे। अब ये बेचारे लोग, इनको सैलरी नहीं मिली हुई, ये कह रहे हैं कि अच्छा यार किस तरह से अपनी जायज़ तनख्वाह ली जाए। तो चौधरी नज़ीर साहब के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। ये हमीद ने वाकया बयान किया हुआ है। वो चौधरी नज़ीर के दफ्तर में गए जो अनारकली में था, बाहर था अनारकली के, वहाँ वो गए और वो चौधरी साहब खत लिख रहे हैं सर झुका के। एक्सपेक्टेशन है कि शायद सर उठाएं, तो अब वो बात कैसे करें इनसे कि जी अपनी तनख्वाह हमको चाहिए। तो वो उसने आंखों में बात की है हमीद ने साहिर से कि भाई कहो इनसे। अब साहिर साहब जारी बात है डरपोक, मशहूर थे डरपोक, वो तो नहीं कहेंगे। बड़ी मुश्किल से उसने कहा जी कि वो कुछ पैसे वैसे मतलब हमें दे दे। तो अब चौधरी नज़ीर साहब भी बड़े मतलब दुनिया शनास आदमी थे, उन्होंने अपने डाकिए को कहा हुआ था कि भाई जब ये शायर वायर और अदीब देखो मेरे ऑफिस में तो कोई मनी ऑर्डर मत लाना, क्योंकि वो मनी ऑर्डर लाएगा तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई पैसे आए हैं और फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो उन चौधरी नज़ीर साहब ने उन शायर को कहा कि भाई मेरा तो हाथ बड़ा तंग है, क्योंकि बट वो आजकल फसादात हो रहे हैं तो इश्तिहारात नहीं मिल रहे, तो पैसे तो मेरे पास नहीं है, जेबें खाली हैं। तो फिर शायर कहता है कि कुछ करें तो सही। तो चौधरी नज़ीर साहब कहते हैं तुमने क्या करना है इन पैसों का, और उनको पता था कि ये पैसे किधर जाने हैं। पैसों का क्या करना था, देखें जरा। उस जमाने में 2-3 मशहूर होटल थे, अरब होटल था, उसके अलावा नगीना बेकरी थी, वहां पे जाके ये लोग केक पेस्ट्री खाते थे, कॉफी इंजॉय करते थे। ये इनकी अय्याशी थी, मतलब मजहबी मुनाफरत और उस किस्म की कोई चीजें इनके दिमाग में नहीं थी। केक पेस्ट्री ये सब यार दोस्त जो के बाद में उर्दू के बहुत बड़े बड़े अदीब बन गए, ये सब लोग के। तो चौधरी नज़ीर साहब कहते थे अच्छा केक पेस्ट्री खाने, फिर वो बड़ा थोड़ा ड्रामा करते थे। अच्छा फिर वो अपने प्रिंटर के पास जाके 10 रुपए उधार लेकर आते थे, कहते थे ये 5 रखो और 5 मुझे दे दो। तो ये कंसर्न्स थे उस जमाने में, मतलब ये नौजवान लोग जिनको रॉयल्टी नहीं मिलती थी, जो कि
एक तरक्की पसंद आज़ादी के ख्वाब देखते थे। मतलब मजहबी इंतहा पसंदी, हिंदू मुसलमान, कोई ऐसी बात नहीं थी उस जमाने में लोगों में, ये उससे पाक थे। फिक्र तौंसी की बात हुई, ये हिंदू थे। पंजाब में एक शहर है तौंसा शरीफ, जहाँ पे एक दरगाह है, इसलिए उसको शरीफ कहते हैं, जिससे अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ कहते हैं। तौंसा से फिक्र तौंसवी लाहौर आया और लाहौर छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो रोते हुए गया है लाहौर से, क्योंकि नहीं जाना चाहता था। और फिक्र तौंसवी उर्दू के बड़े ह्यूमरस राइटर्स में है। उसने वहां पे जाके एक बड़ा अहम किताब, एक डॉक्यूमेंट्री लिखी, छठा दरिया के नाम से, क्योंकि पंजाब तो 5 दरियाओं की सरजमीन है ना, पंजाब। तो ये छठा दरिया क्या है? छठा दरिया वो खून का दरिया है जो कि बंटवारे में, जो जब मुसलमान, हिंदू और सिखों पे जुनून तारी हुआ, उन्होंने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू किया। और हमें पता है कि ये किसने करवाया था, ये हमें पता है अब ये किसकी कारस्तानी थी। जो यहाँ से चला गया वो अपने पीछे ये छोड़ गया। तो फिक्र तौंसवी ने छठा दरिया के नाम से वो दस्तावेज लिखी कि उसने लाहौर में क्या देखा, जो वाल्टन में कैंप्स यहाँ पे, जो वहां से शरणार्थी और रेफ्यूजीज आए। बहुत ही दिलगुदाज वो किताब है, जिसका अब इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है, द सिक्स्थ रिवर के नाम से। तो पढ़ने वाली किताब है। तो फिक्र तौंसवी हिंदू था, उसको लाहौर छोड़ के जाना पड़ा। बाद में वो हिंदुस्तान जाके एक बहुत बड़ा मज़ार निगार बन गया, लेकिन दिल उसका खून के आंसू ही रोता रहा जो कि उसने लाहौर में देखा। और साहिर लुधियानवी गए यहाँ से, ये 2 लोग गए। कुरतुल आइन हैदर जो कि उर्दू की बहुत बड़ी अदीब थी, नेहरू की दोस्त थी, वो पाकिस्तान आई, लेकिन बाद में वो भी चली गई हिंदुस्तान। और उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान जो कि बहुत ही बड़े हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के उस्ताद थे, उनको यहाँ पे शायद वो शोहरत नहीं मिली जिसके मुस्तहिक थे। तो नेहरू ने उनको वहाँ पे बुलाया इलाज के लिए, और वो वहाँ चले गए और फिर कभी पाकिस्तान नहीं आए। और अदनान समी खान आपको पता है हमारे, जो वो अब गए हैं, वो तो अभी गए हैं। तो ये चीज़ें मतलब कम हुई। तो ये वो लोग थे जिनमें साहिर उठते बैठते थे, और बाद में हालात तंग होना शुरू हो गए, क्योंकि फिर कम्युनलाइजेशन शुरू हो गई 48-49 में। बिल्कुल नक्शा क्लियर हो गया था कि बंटवारा हो जाएगा। जो बड़ी थी, जिनमें मुस्लिम लीग, जिनमें कांग्रेस, जिनमें अकाली दल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि 1924 में कायम हुई थी, वो भी सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान बनना चाहिए। तो हालात ख़राब हो गए साहिर जैसे लोगों के लिए। और एक बात यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये साहिर लुधियानवी के बारे में एक मिथ है कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की और वो बस एक कम्युनिस्ट, वैसे उनकी सोच कम्युनिस्ट थी। ये बात बिल्कुल गलत है। हमीद अख्तर ने खाका लिखा है बड़ा मशहूर, उनकी किताब है खाकों की आशनाइयाँ क्या क्या, और हमीद अख्तर साहिर का सबसे करीबी दोस्त था। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। 2-4 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੈੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕੁਛ ਪਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੈੱਟ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ
ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਔਰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੈੱਟ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਲਖਨਊ, ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਗਦਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ ਦਿਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੀਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਦਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਦੀਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦੀਬ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਦੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਿਰ ਔਰ ਲਾਹੌਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ 1 ਸਾਲਗਿਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਮੈਮਰੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਈ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ MA ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹਮਜਮਾਤਨ, ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ MPhil ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ USA ਤੋਂ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਵੀ USA ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਬੇਗੋਵਾਲ,
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਸ਼ਾਇਲਾ ਦਿਲਦਾਰ ਖਾਰਾ GC ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਸਪਾਲ ਫਿਰਦੌਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ KMV ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰੀ USA ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੋਝ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਕ ਟੀਮ, ਜਸਕਰਨ, ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਕਮਲੇਸ਼, ਦਿਲਦਾਰ, ਮਹਿਤਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MA ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਵਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਲਖੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਲਖੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਜ਼ਾ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਬੱਸ ਲੈਣੀ, ਔਰ ਜਾਰਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਨਾ 7-7:30 ਵਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 8 ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਚੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਜਾਰਲੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਰਲਾ ਲੰਘ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या माने। तो अज ये गल सुनदियां मेरे अंदर वो याद, वो मैमरी बहुत उमड़ रही सी, तो मेरा जी करता सीगा कि जे अगर प्रोग्राम चलता रहिंदा असीं उन्हां तों ये नज़म सुननी सी, तो शायद होर भी कोई नज़म उन्हां तों सुनदे, क्योंकि वो नज़म नूं पढ़न वाले उन्होंने बड़ी महारत हासिल है, क्योंकि उन्होंने ड्रामैटिक रीडर उन्होंने कहा जाता है और मन्ने हुए आ वो, तो उन्होंने तो असीं बड़ा कुछ सुनना सीगा।
ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਸਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੱਡਿਆ ਕੋੜਿਆ ਪਾਣੀ ਮੁਖ ਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਕੋੜੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ ਤੂੰ, ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਈ ਤੂੰ, ਸਾਲੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ ਵੇ ਕੋੜੀ ਤੱਕਦੀ ਰਾਹਾਂ ਵੇ, ਔੜ ਤਲਾ ਹੁਲਾਣਨੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਲਾਣਨੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰੰਗਾ ਖੰਜਰਨੀ, ਡੁੱਕਿਆ ਕੋੜਾ ਨੀ ਖੂਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾ ਨੀ, ਖੂਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਦਾ ਨੀ, ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾ ਨੀ, ਸੌਂ ਜਾ ਕੋੜਾ ਦੀਂਦਾ ਏ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਏ, ਸੌਂ ਜਾ ਨਿੱਕਿਆ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਕੋੜਾ ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਹਾਏ ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਕੋੜਿਆ ਪਾਣੀ ਮੁਖ ਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਕੋੜਿਆ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ ਵੇ ਵੱਲ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਈ ਵੇ, ਧੁੱਪਾਂ ਜੋਗੀ ਕੋੜਿਆ ਨਦੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋੜਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੀ, ਸੌਂ ਜਾ ਨਿੱਕਿਆ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਸੌਂ ਜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਲੋਰੀ ਨਿੱਕਿਆ ਲੋਰੀ
ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਰਾਤਬ ਖੋਰਾ ਸੀ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਣੀ ਟਾਣਾ ਹੇਠਲਾ ਗੂੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਗਲੋਲ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜੀਏ ਲੋਰੀ ਵੇ ਨਿਕਿਆ ਲੋਰੀ ਵੇ ਚਿੰਦਿਆ ਸੌਂਜਾ ਨਿਕਿਆ ਸੌਂਜਾ ਵੇ ਸੌਂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਮੁੰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਸੌਂਜਾ ਨਿਕਿਆ ਸੌਂਜਾ ਵੇ ਸੌਂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕੋੜਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਰਲਾਉਣ ਪੌੜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਖੁੱਬਾ ਖਾਂਦਰ ਵੇ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗਾ ਖੰਜਰ ਵੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਕੋੜਾ ਵੇ ਖੂਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾ ਵੇ ਖੂਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾ ਵੇ ਖੂਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਤਾ ਵੇ ਨੀਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾ ਵੇ ਲੋਰੀ ਵੇ ਨਿਕਿਆ ਲੋਰੀ ਵੇ ਚਿੰਦਿਆ ਲੋਰੀ ਸੌਂਜਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਸੌਂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਸੌਂਜਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਿਆ ਕੋੜਾ ਹੁਣ ਗੁਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡਾ ਛੋਇਆ ਨਾ ਨਿੱਘਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖਾਰ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਖਿਆਰ ਸੀ ਪੱਕਾ ਪਰਬਤ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਮਸਿਓ ਹਿਲਕ ਸਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹਾਏ ਉਹ ਵੱਡਿਆ ਕੋੜਿਆ ਪਾਣੀ ਮੁਖ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਧੁੱਪਾਂ ਜੋਗੇ ਕੋੜਿਆ ਨਦੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋੜਿਆ ਰੋਕੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋੜੋ ਨੀ ਮੋੜੋ ਕੋੜਾ ਮੋੜੋ ਨੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਾਣ ਦਿਓ ਬਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਣ ਦਿਓ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਣਾ ਨੀ ਟਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਨੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਨੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੀ ਸੁੱਤਾ ਲਾਲ ਪੰਘੂੜੇ ਨੀ ਚੰਦਨ ਕਾਰ ਚਰਾਈ ਨੀ ਸੁੱਤਾ ਲਾਲ ਪੰਘੂੜੇ ਨੀ ਮਖਮਲ ਲੈ